हेलो एवरीवन, पॉलिटिकल साइंस क्लास में आप सबका स्वागत है। इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर और टॉपिक होगा एंड ऑफ बाइपोलरिटी। एंड ऑफ बाइपोलरिटी का मतलब है 1991 में कोल्ड वॉर का ख़त्म होना और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन होना। विद द एंड ऑफ कोल्ड वॉर and with the end of the USSR, you can say the disintegration of USSR, bipolarity also ended. This is called end of bipolarity. Before disintegration of USSR, the world politics was bipolar. There were two poles of politics. One was led by USA and another was by USSR. But after a long tussle between USA and USSR, USSR disintegrated in 1991, and with this disintegration of USSR, bipolarity also ended. So this discussion will be centered regarding the questions of bipolarity, regarding the questions of end of bipolarity, what were the main issues at that time. Before discussing end of bipolarity, we will also discuss about the Cold War. Here question arises, what is Cold War? Cold War was an ideological tussle between USA and USSR after 1945, and in 1945 Second World War ended, and after the end of Second World War, Cold War started. Cold War, it was called cold because weapons were not used in this war. It was the war-like situation, but not a real war. On the one hand, USA was trying to proliferate, to spread the capitalist ideology based on LPG liberalization, privatization and globalization. On the other hand, USSR was trying to proliferate its ideology, that was communism or socialism. So, in proliferation war, in proliferation struggle, proliferation of ideologies struggle, the situation like emerged, warlike situation emerged. This warlike situation is called Cold War. Let's start some important MCQs on end of bipolarity. This is the part of the syllabus of 12th class also, and this is the part of NCERT syllabus. First question is, when was Berlin Wall constructed? Berlin Wall was constructed in 1960 or 61 or 62 or 65. Its right answer is that the Berlin Wall was constructed in 1961. Construction of Berlin Wall
was the hottest situation of the Cold War. Okay, and this enhanced the Cold War because this wall divided Berlin into two countries. Germany, Berlin is the capital of Germany, and when the Berlin was divided, the Germany also was divided. So it was 1961 when Berlin Wall was constructed. Next question is, when was Berlin wall toppled? एक बार तो इसको बनाया गया, लेकिन बाद में फिर इसको गिरा भी दिया गया. तो कहते हैं कि when was Berlin Wall toppled? उसको कब टॉपल किया गया, कब उसको डिस्ट्रॉय किया गया? तो इट वॉज 1989. ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर. In 1989, Berlin Wall was toppled. It was due to the unification efforts. The supporters of United Germany destroyed this wall, and Germany became one. Berlin became one. You can say that Germany unified again in 1989. Third question is, Germany was reunited in. जर्मनी कब रीयूनाइट हुआ, उसका कब से फिर से एकीकरण कब हुआ? तो बर्लिन की वॉल को 1989 में गिराया गया और 1990 में जर्मनी रीयूनाइट हो गया. तो इट वाज ऑप्शन बी आंसर. इट वाज 1990 व्हेन जर्मनी वाज रीयूनाइटेड. जर्मनी का रीयूनाइट होना यूएसएसआर के लिए बड़ा ब्लो था. इट वाज बिग ब्लो टू द यूएसएसआर, क्योंकि जर्मनी अब एक हो गई. वेस्टर्न जर्मनी एंड ईस्टर्न जर्मनी बिकेम वन कंट्री. ओके, एंड it was considered the you can say the defeat of USSR's efforts of proliferation of communism. Fourth question is, when was USSR organized after Bolshevik Revolution? Bolshevik Revolution के बाद USSR का गठन कब हुआ? Bolshevik Revolution took place in 1917. This is called October Revolution also. In October 1917, Bolshevik Revolution or the Communist Revolution took place in Russia, and after the revolution, Russia organized into USSR. यूएसएसआर 15 राज्यों का एक संगठन बन गया और जिसको हम यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक के नाम से भी जानते हैं. तो ये 1917 था जब यूएसएसआर ऑर्गेनाइज्ड हुआ और वहाँ पर एक कम्युनिस्ट सिस्टम एस्टैब्लिश हो गया, सोवियत सिस्टम एस्टैब्लिश्ड हो गया. सोवियत सिस्टम वाज बेस्ड ऑन कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म. ओके, जिसमें सामूहिकरण, एक कलेक्टिव एफर्ट्स, कलेक्टिव बिजनेस, कलेक्टिव एग्रीकल्चर और एब्सेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, नेशनलाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, नेशनलाइजेशन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, इन सब को बढ़ावा दिया गया. तो इस सभी को हम सोवियत रिपब्लिक या सोवियत सिस्टम भी कहते हैं. तो इट वाज 1917 व्हेन यूएसएसआर वाज ऑर्गेनाइज्ड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
Bolshevik controlled system is known as what? बॉल्शेविक कंट्रोल्ड सिस्टम को हम और किस नाम से जानते हैं? यानी कि यूएसएसआर में, रशिया में कम्युनिस्ट शासन स्थापित हो गया, उसको बॉल्शेविक कंट्रोल्ड सिस्टम कहते हैं। लेकिन उसका एक और नाम है जो बहुत फेमस नाम है, वह है ऑप्शन सी, दैट इज सोवियत सिस्टम। सोवियत सिस्टम के नाम से हम उसे जानते हैं। ना रशियन के नाम से जानते, ना कम्युनिस्ट सिस्टम के नाम से जानते, ना अमेरिकन सिस्टम के नाम से जानते, हम उसे सोवियत सिस्टम के नाम से जानते हैं। और सोवियत सिस्टम को लंबे समय तक मॉडल सिस्टम के तौर पे प्रेजेंट किया गया यूएसएसआर की तरफ से, और बहुत बड़े पैमाने पर, ऑन ए लार्ज स्केल, कम्युनिज्म प्रोलिफरेटेड थ्रू आउट द वर्ल्ड। Another question is, Mikhail Gorbachev enforced which of the following policies to democratize the Soviet system? सोवियत सिस्टम को डेमोक्रेटाइज करने के लिए, उसे लिबरलाइज करने के लिए, उसे मॉडर्न बनाने के लिए मिखाइल गोर्बाचोव ने कुछ पॉलिसीज़ को एनफोर्स किया, लागू किया। वो कौन सी पॉलिसी थी? तो इसका ऑप्शन है ए, प्रेस्ट्रॉइका, जिसका मीनिंग है रिकंस्ट्रक्शन, मतलब पुनर्रचना, ओके, या पुनः संरचना। बी, ग्लासनोस्ट, जिसे कहते हैं ओपननेस, खुलापन, सिस्टम में खुलापन, क्योंकि कम्युनिस्ट सिस्टम वाज ए क्लोज्ड सिस्टम, और मिखाइल गोर्बाचोव ने ग्लासनोस्ट लेके आए, जिसे कहते हैं ओपननेस। सी, उस्क्रोनी, उस्क्रोनी का मतलब होता है रिफॉर्म्स इन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में सुधार। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। तो इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबाव। मिखाइल गोर्बाचोव एनफोर्स्ड पेरेस्ट्रोइका, ग्लासनोस्ट एंड उस्क्रोनी. These the policies were also held responsible for the disintegration of USSR. Some scholars say that Mikhail Gorbachev played key role in disintegration of USSR by adopting policies like perestroika, glasnost and uskrony. Okay, Mikhail Gorbachev took steps to strengthen USSR, but his attempts, his efforts failed, and USSR disintegrated into 15 new states or new countries. Seventh question is, when was Soviet Union disintegrated? Option A, 1990, 1991, 1992, 1993. Its right answer is 1991. 1991 में यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट हो जाता है। देखिए घटनाक्रम, देखिए घटनाक्रम क्या है कि 1989 में बर्लिन की दीवार गिरा दी गई। बर्लिन वॉल वॉज टॉपल्ड इन 1989. इन 1990 जर्मनी रीयूनाइटेड। और अब अगली जो घटना है वो है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन की। यानी कि जर्मनी के रीयूनिफिकेशन के साथ ही यूएसएसआर की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी, यूएसएसआर के डिसॉल्व होने की उल्टी गिनती शुरू हो गई थी। और बहुत कम समय में ही 1991 में ही यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो when was Soviet Union means USSR disintegrated? It was 1991 when Soviet Union was disintegrated. उसका विघटन हो गया। 8th question is, who played key role in disintegration of USSR? It is some error here. It is not USSS, it is USSR. Okay, last S must be read as R, USSR. Who played key role in disintegration of USSR? Option, Vladimir Putin, Mikhail Gorbachev, Boris Yeltsin, none of the above. Its right answer is
as we have discussed it earlier, is Mikhail Gorbachev. Mikhail Gorbachev played key role in disintegration of USSR. It means his efforts became a big reason, become a big factor responsible for disintegration of USSR. He took some steps, he adopted some policies, he enforced some policies, some took strong decisions that proved against USSR, and USSR failed and USSR dissolved. Mikhail Gorbachev was responsible. Ninth question is, what was or were the causes of disintegration of USSR? USSR की डिसइंटीग्रेशन के कारण क्या थे या क्या था? कारण एक था या अनेक थे? ऑप्शन ए, इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, बी, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन, स्पेलिंग मिस्टेक है, सी, rise of nationalism and aspiration for sovereignty, D, all of the above. Its right answer is all of the above. In USSR or the Soviet Union, there was economic stagnation. Economy became very closed and there was no progress in the economy, and people were unhappy with the system. Okay, it was the first reason. Second reason was political and administrative stagnation. People were feeling suffocated. लोग घुटन महसूस कर रहे थे, because people had no freedom, people had no rights. Okay, they had only duties to perform. So इस तरह से पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव स्टैग्नेशन आ गया था, जिसको हम कह सकते हैं कि वहाँ जड़ता आ गई थी, गति नहीं थी, प्रगति नहीं थी, सब कुछ ठहर सा गया था, ठहराव आ गया था और लोग जो है घुटन महसूस कर रहे थे. सी, तीसरा कारण था राइज ऑफ नेशनलिज्म. अब जो 15 अलग अलग जो यूनिट्स थे यूएसएसआर के, उनके निवासियों के मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा हो जाती है और वो स्वयं को एक अलग नेशन के तौर पे देखना शुरू कर देते हैं. द स्पिरिट ऑफ नेशनलिज्म emerged among the people of the different units of USSR. This was also became a strong factor that led this USSR to the disintegration. Another reason was aspiration for sovereignty. अब अलग अलग जो यूनिट्स थे उनके लोगों के मन में नेशनलिज्म की स्पिरिट तो एमर्ज हो ही रही थी, उनके मन में सॉवरेंटी, फ्रीडम, आज़ादी, सेल्फ डिसीजन की महत्वाकांक्षा भी पैदा हो रही थी. वो चाहते थे कि हम यूएसएसआर के क्लचेस से, यूएसएसआर के पंजे से बाहर निकलकर और एक इंडिपेंडेंट कंट्री बन जाए, एक सॉवरन कंट्री बन जाए, जिसको अपने डिसीजंस लेने का खुद को अधिकार हो. तो चाहे वो लताविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, हर्जेगोविनिया, बोस्निया, है ना, ये सभी जितने भी कंट्रीज़ थे, फिर चाहे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन, जो आज यूक्रेन और रशिया का जो वार चल रहा है, रशिया, ये सारे जो मिलकर के कम से कम 15 कंट्री बनते हैं, यूगोस्लाविया, चेकोस्लोवाकिया, है ना. तो इन सब कंट्रीज़ के लोगों के मन में आज़ाद होने की एक इच्छा पैदा हो गई. तो ये एक बड़ा कारण था यूएसएसआर के विघटित होने का. इसके अलावा पांचवा जो कारण था वो था मिखाइल गोर्बाचेव खुद, जो वहाँ का प्रेसिडेंट था. उसने कुछ ऐसे डिसीजंस लिए, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ अडॉप्ट की, जैसे प्रेस्ट्रॉइका, उस्क्रोनी, ग्लासनोस्ट. ये सारे कारण मिलकर के यूएसएसआर की डिसोल्यूशन के लिए गंभीर कारक बने. ओके, तो इट्स आंसर इज ऑल ऑफ द अबव. 10th question is, when was Warsaw Pact ended officially? Warsaw Pact was against the NATO
और सीटो। अमेरिका ने अपनी प्रतिरक्षा को, अपने डिफेंस को मजबूत करने के लिए कुछ देशों का एक सैनिक गठबंधन, मिलिट्री अलायंस बनाया था, जिसे हम नाटो कहते हैं। ओके, नाटो उसने 1949 में उसने नाटो बनाया। उसके प्रत्युत्तर में यूएसएसआर ने भी एक मिलिट्री अलायंस बनाया, जिसको हम कहते हैं वारसा पैक्ट, और ये 1954 में 1954 में उसने ये संगठन बनाया। यही संगठन, जिसको हम वारसा पैक्ट कहते हैं, डिसॉल्व हो जाता है, टूट जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दैट इज जुलाई 1991। जुलाई 1991 में ये वारसा पैक्ट भी एंड हो जाता है। ओके, यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया तो अब वारसा पैक्ट भी खत्म हो गया। 11th क्वेश्चन है कि व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर ऑन वर्ल्ड पॉलिटिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के वर्ल्ड पॉलिटिक्स पर, विश्व की राजनीति पर क्या असर पड़े। ऑप्शन ए, एंड ऑफ द कोल्ड वार। बी, राइज ऑफ द न्यू स्टेट्स, इट इज़ नॉट नी, इट इज़ न्यू स्टेट्स, NEW। सी, चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर, एंड डी, ऑल ऑफ द अबव। इट्स राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर लेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ कोल्ड वार। जैसे ही डिसइंटीग्रेशन हो गया, कोल्ड वार खत्म हो गया। कोल्ड वार किसके बीच में था? यूएस से यूएसएसआर के बीच में था। अब यूएसएसआर ही नहीं रहा तो फिर अब कोल्ड वार किसके बीच में रहेगा? तो कोल्ड वार का एंड हो गया। दूसरा, राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। अब यूएसएसआर जब डिसइंटीग्रेट हो गया, 15 टुकड़ों में बट गया, तो उसमें 15 नए नए राज्य एमर्ज हो गए ना। चाहे वो लताविया हो, एस्टोनिया हो, लिथुआनिया हो, हर्जेगोविनिया हो, बॉस्निया हो, चेकोस्लोवाकिया हो, चाहे यूगोस्लाविया हो, यूक्रेन हो, कजाकिस्तान वगैरह, ये सारे कंट्रीज जो है, रूस, उसमें से अलग अलग 15 स्टेट बन गए। तो इसका था राइज ऑफ न्यू स्टेट्स। तीसरा था चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर। बैलेंस ऑफ पावर में भी चेंज आ गया, क्योंकि अर्लियर बैलेंस ऑफ पावर वाज बाइपोलर, है ना। इक्विलिब्रियम वाज बैलेंस्ड। ऑन द वन हैंड देयर वाज यूएसए, ऑन द अदर हैंड देयर वाज यूएसएसआर। तो जो शक्ति संतुलन की जो तुल्य भारिता है, जो तुला है, जो तराजू है, वो बैलेंस्ड थी। लेकिन जैसे यूएसएसआर डिसॉल्व हुआ, वो संतुलन की जो तराजू है वो यूएसएसआर के पक्ष में झुक गई, यूएसए के पक्ष में झुक गई, और यूएसए एक स्ट्रॉन्ग जो है, मजबूत, पावरफुल कंट्री बन गया, पावरफुल जो है एक संगठन बन गया। और इस तरह से पूरा जो वर्ल्ड है, जो कि बाइपोलर था, वो यूनिपोलर हो गया। तो इसे कहते हैं चेंज इन बैलेंस ऑफ पावर। ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबाव। तो इट्स राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबाव। डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर led towards end of Cold War, rise of new states and change in balance of power, okay, emergence of unipolar system, end of arms race। जो पहले आर्म्स रेस चल रही थी, हथियारों की दौड़ चल रही थी दोनों ही गुटों में, यूएसए और यूएसएसआर में, वो भी ख़त्म हो गई अब, क्योंकि अब एक जो राइवल था वो कमज़ोर पड़ गया। तो अब दूसरा क्यों हथियार खरीदेगा? तो इससे हथियारों की दौड़ भी समाप्त हो गई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वाज द सिंबल ऑफ एंड ऑफ कोल्ड वॉर। एंड कोल्ड वॉर के अंत का प्रतीक क्या था? ए, टॉपलिंग ऑफ चाइनीज वॉल, टॉपलिंग ऑफ बर्लिन वॉल, कोरियन क्राइसिस 1950, क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962। यानी कि कोल्ड वॉर का एंड का क्या प्रतीक था, क्या सिंबल था? तो इसका आंसर है बी, टॉपलिंग ऑफ बर्लिन वॉल इन 1989। बर्लिन वॉल का 1989 में गिरना कोल्ड वॉर के अंत का प्रतीक था, वहीं से उसका अंत शुरू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी।
देखिए जब जब यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया तो उसमें से 15 नए कंट्री बन गई। अब इन 15 कंट्रीज़ को यूएस से अपने ग्रुप में शामिल करने के लिए और इन्हें कम्युनिस्ट रंग से बाहर निकाल कर, इनका कम्युनिस्ट रंग उतार करके इनके ऊपर कैपिटलिस्ट रंग चढ़ाने के लिए, इन्हें पूंजीवादी नेचर का बनाने के लिए उसने एक शॉक थेरेपी अडॉप्ट की। ठीक है, इसे कहते हैं ट्रीटमेंट बाय शॉक, कष्ट दे करके उपचार करना, पीड़ा पहुंचा करके उपचार करना। तो ये शॉक थेरेपी अमेरिका ने उन, और ख़ासतौर से आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक ने ये शॉक थेरेपी अपनाई यूएसएसआर से अलग हुए उन देशों के खिलाफ जो अब यूएसए के साथ जुड़ना चाहते थे, उससे फेवर लेना चाहते थे। तो उन्होंने कुछ ऐसी गंभीर शर्तें उनके ऊपर थोप दी। कम्युनिस्ट सिस्टम को पूरी तरह से रिजेक्ट करने के लिए उन पर जो है एक कंडीशन थोप दी, और जितनी भी वहाँ की जो इकोनॉमी थी उसको पूरी तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कन्वर्ट करने की उनके ऊपर शर्त थोप दी। ओके, तो व्हाट वर द इम्पैक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी? शॉक थेरेपी के से फिर क्या होता है? डाउनफॉल ऑफ इंडस्ट्रीज, सोशल चेंज, एंड ऑफ फूड सिक्योरिटी, डी ऑल ऑफ द अबव। इट्स राइट आंसर इज डी ऑल ऑफ द अबव। यानी कि जब शॉक थेरेपी आई तो शॉक थेरेपी से उनके उद्योगों का पतन हो गया। जो पहले सरकारी उद्योग होते थे अब वो निजी उद्योग बन गए, उनकी उनकी बोली लगाई गई, उनकी खरीदारी की गई, नीलामी की गई, दे वर ऑक्शन्ड, और जो अमीर लोगों ने उन्हें खरीद लिया। तो इस तरह से इंडस्ट्री धाराशायी हो गई। दूसरा, सोशल चेंज भी आया। अब समाज के अंदर वही जो है प्रॉपर्टी होल्डर्स और प्रॉपर्टी लेस दो गुट पैदा हो गए। पहले वहाँ पर कोई प्रॉपर्टी होल्डर नहीं होता था, इक्वलिटी थी, सब लोग समान होते थे। अब वहाँ असमानता स्थापित हो गई, तो एक सोशल चेंज आया। तीसरा था एंड ऑफ फूड सिक्योरिटी। पहले वहाँ फूड सिक्योरिटी थी, किसी को भी जो है भूख खाने की कोई कमी नहीं होने दी जाती थी, और एक कलेक्टिव फार्मिंग, सब लोग मिलजुल कर वहाँ काम करते थे, खेती बाड़ी होती थी, तो एक फूड सिक्योरिटी थी। ठीक है, गवर्नमेंट वहाँ सरकारी खर्चे पे चलने वाली वहाँ पर जो है मैस हुआ करती थी, है ना, कैंटीन हुआ करती थी बड़ी बड़ी, जहाँ लोग जा कर के अपना पेट भर सकते थे। अब वो सब ख़त्म कर दी गई, यानी कि लोगों की जो खाद्य सुरक्षा थी उसका अंत हो गया। ये सारे परिवर्तन शॉक थेरेपी को अडॉप्ट करने के बाद आए। 14th क्वेश्चन इज वर्ल्ड आफ्टर एंड ऑफ कोल्ड वार इज, कैसा है अब? कोल्ड वार के पतन के बाद भारत विश्व कैसा है? तो इट इज़ यूनिपोलर, इट इज़ यूनिपोलर। अब ये एक ध्रुवीय है ना, जो कि पहले बाइपोलर था, अब ये इट बिकेम यूनिपोलर। अब विश्व की एक ध्रुवी है और वो है यूएसए। 15th question, that is the last question of this video class, is USSR disintegrated into how many states? कितने राज्यों में डिसइंटीग्रेट हो गया यूएसएसआर? तो यूएसएसआर डिसइंटीग्रेटेड इन 15 न्यू स्टेट्स। इसके बारे में हमने पहले भी चर्चा कर ली है। तो दिस वीडियो क्लास एंड्स हेयर। अगर आपको ये वीडियो क्लास अच्छा लगे और ये आपकी कुछ हेल्प करता है, आपको चीज़ों को समझाने में कुछ मदद करता है, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि आपको आगे नए वीडियोस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।